नमस्कार दोस्तों। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप जानते हैं कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ करते रहता हूं। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी भी लगती है और कई बार मुझे कमेंट्स भी आते हैं और डिसएग्रीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन ये चैनल आपका है। तो जहां आपको लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ठीक नहीं है या सही नहीं है, तो आपको फ्रीडम है मेरे से उस संबंध में बात करने का। This channel has been working for you for almost last 4 years, and we have touched based several topics. आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में this year in the month of June, the Reserve Bank of India issued detailed guidelines on lending against gold and silver collateral directions 2025. Of course, hitherto the gold loan directives were selectively issued by Reserve Bank of India to banks, and there were differential guidelines for the urban cooperative banks, NBFCs, commercial banks, so on and so forth. And the Reserve Bank of India wanted that the in order to contain the lending against the gold in the country itself, all the regulated entities are covered under these directions, and there are certain procedural aspects which require some time to set up. जैसे कि आपकी लोन एग्रीमेंट में चेंज करना, ये करना, उसके लिए टाइम लगने वाला है। इसलिए ये जो डायरेक्शन है ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 6 महीने बाकी है और 6 महीने में हम हर उन चीज़ों पे बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग ये इसमें प्योरिटी लाना चाहेंगे। आज ये पहले पार्ट में मैं सिर्फ मेन फीचर्स की बात करूंगा, और सेकंड पार्ट विल बी मोर ऑफ impact analysis of the circular, impact on the net interest margin of the banks and gold loan portfolio as such of the cooperative banks, which has legalized certain things the banks were doing, but it has now legalized certain things by virtue of this circular. Despite this, the banks are required to devise its own policy, and this gold loan policy should be a part of your credit policy, as well as they have granted, खुल के जिसको हम कहते हैं ना, खुल के उन्होंने सिल्वर के सामने भी कहा है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने लाई हैं। कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें हम जानते हैं, लेकिन harmonious implementation of gold loan directions are required. There are several objections on this particular circular, and to me what I feel is this: these objections are required to be represented to the Reserve Bank of India. These objections have come to me as an individual when I discussed with the decision makers in the urban cooperative banking sector. In fact, the NBFCs have suffered a dent, and that's how I look to it, and therefore it's necessary that in this part, today's part, we will focus on the main features that have come into play as far as the regulated entities are concerned, which includes the urban cooperative banks as well. As stated earlier, this circular is applicable to all the regulated entities, including commercial banks, NBFCs, and all others who are covered by the regulations of Reserve Bank of India. And these guidelines are required to be adopted by each regulatory entity by 1 April 2026. इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो और आपकी अगर प्रिपरेशन हो गई है तो आप अर्लियर एडॉप्शन भी इसका कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीरियड दैट हैज बीन ग्रांटेड इज say 31st of March 2026. From 1st April 2026, whatever the loans that you are going to do would be as per the guidelines which are covered under here. पहली बार रिजर्व बैंक ने इसमें दो कैटेगरीज गोल्ड लोन की लाई है। मैं मोटा बात करने वाला हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव perused फ्रॉम दिस सर्कुलर। गोल्ड लोन को उन्होंने दो कैटेगरी में तब्दील कर दिया है। व्हाट दे आर टॉकिंग इनकम जनरेटिंग लोन्स for the productive activity, and they are talking of consumption loans for personal use. और ये जो पर्सनल यूज का जो पहले से हम लोग गोल्ड लोन के लिए देते थे, गोल्ड लोन आदमी कब लेता है? जब वो पूरा कॉर्नर हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है पैसा खड़ा करने के लिए,
ये इंडिविजुअल के बारे में भी वैसा ही है और कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में भी ऐसा ही है। तो 2.5 लाख तक जो लोन्स है उसके बारे में देर आर some lenient view which is taken by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is not stringent for a loan up to 2.5 lakhs, लेकिन उसके ऊपर वो stringent guidelines हैं. There are typical new things which have come into this particular advisory from Reserve Bank of India, which we will cover in the second part of this particular series. उन्होंने ये कहा है कि एलिजिबल कोलैटरल क्या होगा गोल्ड के फॉर्म में या ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में, एलिजिबल कैटेगरी क्या होगा या कॉइन्स जो होंगी उनका उन्होंने क्लासिफिकेशन पहली बार कर दिया है। क्या क्लासिफिकेशन कर दिया है? वो 22 कैरेट के ऊपर होने चाहिए। 22 कैरेट के नीचे वाले कैरेट्स के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर आप लोग लोन नहीं दे सकते हैं या रिप्लेस भी नहीं करवा सकते हैं। और यूनिट्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ्स आर प्रोहिबिटेड अंडर दीज गाइडलाइंस। इसका मतलब ये है कि दे आर नैरोइंग डाउन द वर्सेटाइल एक्टिविटी वेयर वी वर नॉट रियली कीन ऑन फुल लुकिंग एट द कैरेट्स। अगर मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूँ, देर आर सेवरल बोरोवर्स हु टेक लोन in a particular period and repay that and again take the loan. This has been a kind of recurring event in the urban cooperative banks. लेकिन अभी आपको उन्हें ये ध्यान में रखना होगा वो वैल्यू कैसा होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, वो हम लोग सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। या गोल्ड के वैल्यूएशन के बारे में या एलटीवी के बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल काइंड ऑफ थिंग। इन्होंने पहली बार, रिजर्व बैंक ने पहली बार लिमिट्स डाली है जो गोल्ड प्लेस करते हैं उसके लिए, उनके लिए। उनका ये कहना है कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स होंगे, ये ऑर्नामेंट्स के वेट के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है? इट इज 1 kg पर बोरोवर एंड स्पेसिफाइड गोल्ड कॉइन्स आर कैप्ड at 50 grams per borrower, सिल्वर कॉइन्स at 500 grams पर borrower। ये रिस्ट्रिक्शन पहले नहीं थी। तो अब अभी हम लोग जो गोल्ड लोन्स देते हैं उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि ये लिमिट हम पाले। बुलेट रीपेमेंट के लिए उन्होंने कैप कर दिया है 5 लाख का। 5 लाख के ऊपर बुलेट रीपेमेंट नहीं, मैक्सिमम टेन्योर 12 महीने का होगा। बुलेट रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब 12 महीने पूरे होंगे उस दिन पूरा पैसा आएगा। अभी उसमें उन्होंने डिविएशन किया है। वो क्या डिविएशन है कि जो सभी बैंक कई सालों से करती आ रही है। क्या करती आ रही है? वो बोरोवर का अकाउंट एनपीए होता है बुलेट लोन के बारे में। बुलेट लोन अगर देते हैं, उसका जो लोन होता है वो अगर एनपीए होता है तो उसको इंटरेस्ट भर के वो नया लोन ले लेता है। पहला जो एनपीए होने वाला जो अकाउंट था वो बंद हो जाता है। और कई बार बैंक ये करती है कि थोड़ा हायर अमाउंट देती है ताकि अगर इंटरेस्ट का भी उसके पास पैसा नहीं हो तो वो रिकवर कर सके। रिजर्व बैंक ये इस तरह से नहीं चाहती है। वो अब ये कहते हैं कि आप उसको नया पैसा दे सकते हो जब आपका इंटरेस्ट पूरा रिकवर हो जाएगा और आपके सिस्टम में ये दिखना चाहिए। मराठी में जिसको हम जुनं नवं करणे, यानी पुराना लोन बंद कर दिया और नया लोन लिया। It is virtually kind of cash credit only because borrower doesn't have the income and therefore he is not in a position to pay. और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आप लोन देते हो तो आपको पूरा क्रेडिट अप्रेजल उसका करना पड़ेगा। और लोन टू वैल्यू रेशियो में भी उन्होंने ये कहा है कि कंजम्पशन लोन के लिए 75% का उन्होंने कैप रखा है। और वो एलटीवी का जो कैप होगा वो आपके बोर्ड के पॉलिसी में आना चाहिए। आपकी बोर्ड की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। रोबस्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में गोल्ड लोन लिमिट्स कवर हो जाने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर प्रोटेक्शन के बारे में वो ये लिखते हैं कि कस्टमर्स must get asset certificates, communications in local or chosen language, transparency in auction procedures, and compensation for delays and damages to placed gold. This is something new. और इसीलिए वो जो कहते हैं कि अगर आपको सिस्टम को सुधारना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिस्टम में लानी पड़ती है। अगर आप लाने वाले नहीं हो तो इसमें सुधार कभी नहीं हो सकता। ये डायरेक्शन is one of the fantastic circular wherein all the regulated entities would be following one particular pattern. उसमें उन्होंने और एक ये कहा है, बैंकर को और एक जिम्मेवारी दी है। क्या जिम्मेवारी दी है?
प्रोहिबिशन और कंप्लायंस के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि लेंडिंग अगेंस्ट द डाउटफुल ओनरशिप ऑफ कोलैटरल और रीप्लेस गोल्ड्स इज प्रोहिबिटेड। यानी कि कल अगर गोल्ड लोन और गोल्ड ऑर्नामेंट्स अगर आप प्लेस करके रखते हो और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको ये माना जाएगा कि वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। लेकिन आप जानेंगे कैसे? आप ये किस तरह से जानेंगे? सो देर इज अ नेसेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग कंडक्ट नॉर्म्स फॉर कोलैटरल हैंडलिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा सोना लेके आएगा उसकी ओनरशिप आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। शायद आपको प्रोसेस में ऐसा लिखना पड़ेगा कि आप इसकी ओनरशिप प्रूव करो या ओनरशिप डॉक्यूमेंट करो, जो प्रोक्योरमेंट किया होगा उसकी रिसीट लाओ, समथिंग लाइक दैट, आई डू नॉट नो। और यू विल एंड अप हैविंग a declaration from the borrower. But declaration is one of the weakest documentation link is what I feel. But then the onus is now on the bankers. और रिजर्व बैंक का ये भी कहना है कि these directions are aim to harmonize the gold lending practices and strengthen the regulatory oversight. This is extremely critical thing. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें लाई हैं और ये इन सब चीज़ों के बारे में मेरा ये मानना है कि कंडक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट उन्होंने नए तरीके से लाए हैं। और ये जो डायरेक्शन दिया गया है वो सेक्शन 45J, A 45, L 45, M 21, सेक्शन 21, 35, A 56, मतलब ये इसमें अगर आप कुछ वायलेशन करते हो तो वो पनिशमेंट की तरफ जा सकता है। कई डेफिनेशंस की उन्होंने एप्लीकेशन अपना डेफिनेशंस दी है, वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझना है। सिंगल बोरोर लिमिट जो आपका है वो आपके पॉलिसी में आपको लाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ऑक्शन के बारे में उन्होंने प्रोसेस दी है, उसके बारे में हम लोग अगले संडे को बात करेंगे कि हम लोग ऑक्शन और गोल्ड वैल्यूर का अपॉइंटमेंट, लोन टू वैल्यू रेशो, ये हम किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट संडे को बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि कंडक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने ये कहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर असेसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले संडे में बात करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस दैट हैज बीन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे लास्ट फरवरी में रिजर्व बैंक ने एक गाइडेंस दिया था कि आपको बोरर को की फैक्ट स्टेटमेंट देना है। क्या होता है की फैक्ट स्टेटमेंट में? की फैक्ट स्टेटमेंट में जो बोरर आपसे लोन ले रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको जिस भाषा में समझ में आएगी उसको समझाना पड़ता है। उसमें ईएमआई किस तरह का होगा, क्या होगा, ये डिटेल वीडियो मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप उसको देख सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि की फैक्ट स्टेटमेंट में बहुत सारी बारीकियां गोल्ड लोन के बारे में आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर बोरोवर के दस्तखत लेने पड़ेंगे। वो जो बोरोवर के दस्तखत होंगे वो कंफर्म करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ गोल्ड क्या है और बहुत सारी चीज़ें क्या है, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। बोरोवर का कंसेंट उसके ऊपर लेना पड़ेगा। सबसे अलग चीज़ ये इस सर्कल में जो आई है वो ये कहते हैं, as a part of internal audit, a lender shall carry out periodic surprise verification of the gold and silver collateral pledged with it and shall maintain a record thereof. समझ लो, जो आपके पास गोल्ड के पैकेट्स है उसको आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। A clause in the loan agreement shall be included for obtaining consent of the borrower or borrowers to carry out surprise verification including assay of the pledged golds collateral even in the absence during the tenure of the loan। अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। मेरा ये मानना है कि this is one particular point which I would like to address today, and rest of the points we'll discuss on next Sunday, because circular has a lot of complexities and those complexities are required to be understood by all of us in the same sense and with the same meaning। अब ये क्यों हुआ है? इसकी वजह यह है कि कई बार बैंकर्स गोल्ड लोन देते हैं और वो बोरोर भाग जाता है या बोरोर गायब हो जाता है। बैंक जब ऑक्शन को जाती है तो तब समझ में आता है कि द गोल्ड ऑर्नामेंट्स विच वर केप्ट और प्लेस्ड विद द बैंक आर बोगस और स्पूरियस। इसका मतलब ये है कि सोने की जगह पे पीतल के ऑर्नामेंट्स उन्होंने रख दिए हैं या पॉलिश्ड
गोल्ड ऑर्नामेंट्स उन्होंने रख दिए हैं। तो इसका मतलब ये आता है कि जो गोल्ड वैल्यूअर है उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। आपका जो गोल्ड वैल्यूअर के साथ एग्रीमेंट होगा वो भी आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दीज डायरेक्शंस। वन पार्ट इज 22 कैरेट के नीचे लोन सैंक्शन ही नहीं करना, सिंपल। सेकंड इज आपका जो लोन एग्रीमेंट है, वो जो लोन एग्रीमेंट जब तक प्रिंट होके नहीं आता है, अभी 6 महीने तो आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसमें एक सूटेबल क्लॉज आपको लाना पड़ेगा कि जहां पे एब्सेंस ऑफ द बोरोवर, द ऑडिटर और द रिजर्व बैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अ सरप्राइज इंस्पेक्शन that is normally being done, they will open the gold packet, see whether the gold is genuine. They can call the valuer also, the valuer who has certified, or a cross valuer can be called, who will certify that the gold which is placed is a genuine one, it's a genuine gold, and the carats which have been prescribed or certified by the valuer at the time of valuation of loan are correct ones. और ये बोरोर के एब्सेंस में भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बोरोर को बुला के लाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप पैकेट कैसे खोलोगे? मुझे ये लगता है देयर हैज बीन दिस इज ओनली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकर्स, क्योंकि कई ब्रांचेस में रोज 10, 15, 20, 25 गोल्ड लोन होते हैं। देयर इज अ सेपरेट विंडो फॉर विच दे डिश आउट इन अ क्राउडेड ब्रांचेस। 20-25 गोल्ड लोन्स होते हैं और उसमें कई जल्दबाजी में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जहाँ पे बैंकों को नुकसान हुआ है और जो चीटर बोरोवर है वो बैंक को चीट करके निकल जाता है। अभी इसका रेफरेंस कहाँ पे आएगा? इसका रेफरेंस आपके वो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में भी आता है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट वेयर अंडर यू हैव टू इंश्योर एंड अ सरप्राइज वेरिफिकेशन। जैसे आप कैश काउंट करने के लिए जाते हो 3 महीने में एक बार या जो भी है वो, उसकी वजह क्या है? बिकॉज देर इज रिस्क इन्वॉल्व। अगर बोगस गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपके पास रख दिए है तो उसकी रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है एंड यू हैव टू प्रोवाइड इमीडिएटली 100%। ये अवॉइड करने के लिए सरप्राइज वेरिफिकेशन, देयर कैन बी अ कट ऑफ लिमिट दैट कैन बी प्रिस्क्राइब कि भाई ये वैल्यू के ऊपर गोल्ड है तो देयर वुड बी 2 वैल्यू, समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब। लेकिन जितना आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसको स्ट्रांग करते जाओगे उसमें इनकन्वीनियंस आते जाएगा, बोरोर को इनकन्वीनियंस आते जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा। मैंने देखा है कि कई बैंकों में एक स्पेसिफाइड डे होता है, उसी दिन पे गोल्ड लोन किए जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 वैल्यूज का इंडिपेंडेंट वैल्यू लेके रखते हैं, देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट हैज टू बी डन इन अ डिफरेंट प्रोसेस, स्पेशली व्हेन दी लोन क्वांटम इज एक्सीडिंग 5 लाख। वो ये नहीं कहते कि 5 लाख के ऊपर लोन मत दो, वो कहते हैं एडिक्वेट प्रोसीजर होनी चाहिए, एडिक्वेट एसओपी होनी चाहिए। ये एडिक्वेट एसओपी का मतलब ही यही है कि गोल्ड लोन हैज अ रिस्क and there have been repeated events where the borrowers have cheated, especially when the gold valuer who is assigned to the branch brings his own borrowers for the gold loan. This is a simple trick. वो गोल्ड लोन वैल्यूअर क्या होता है, वो अगर बोगस वैल्यूअर होगा तो वो क्या करता है, वो 10-15 कस्टमर लेके आता है, बोगस गोल्ड लोन ऑर्नामेंट लेके आता है और वो 25-30 लाख आपके बैंक से निकल जाते हैं, वो वैल्यूअर भी गायब हो जाता है। पैसे तो गए, बैंक किसी से भी वसूल नहीं करती, क्योंकि इसमें आप लोग वो गारंटर नहीं लेते हो। 1/2 का होता है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप एक को गारंटर ले सकते हो, आपको एक को बोरो कर सकते हो। लेकिन ये सब पॉलिसी चेंजेस जो है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। जितना आप ये रोबस्ट करोगे उसका फायदा तो है, नुकसान क्या है? टाइम डिले। The efficiency of the process will be critical in such a case, and therefore it is extremely necessary that the gold loan standard operating procedure has to be devised in an appropriate fashion. There were quite a few people who said that the gold packet cannot be opened in the absence of borrower. No, it is not like that. When they say that the packet can be opened by the auditors or the inspectors or the law enforcing agencies, presence of the borrower is not required. What you can do is that you can organize a witness, maybe internal or external, obtain the witness's signature, open the packet, confirm the accuracy, again reseal the packet, keep a note, keep a tab that this packet was opened on so and so date without the absence of the borrower, and these are the 2 witnesses, so that at the time of closure, when you make a delivery, the borrower is satisfied about the contents that he is having.
ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसमें बैंकों की ज़िम्मेवारी बहुत बढ़ने वाली है। और जब ये बैंकों की ज़िम्मेवारी बढ़ती है, तो मेरा ये मानना है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, वो आपको फुल प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फुल प्रूफ कैसे करेंगे, और बाकी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस गोल्ड लोन के बारे में आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट संडे को चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो मैं आपसे बात करता हूँ, यू लाइक दिस थिंग्स, बिकॉज आई ट्राई टू टॉक टू यू ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स। सेकेंडली, आई ऑलवेज से दैट यू मस्ट फॉलो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, तो एक सिंपल कंडीशन आप अपने एग्रीमेंट में डाल सकते हो कि दिस लोन इज सब्जेक्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस एंड गाइडेंस, एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस applicable or mentioned for the urban cooperative bank will have to be complied by the borrower, or as well as by the bank as well. तो उसका जो आपका प्लेज एग्रीमेंट होगा, वो भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसका एप्लीकेशन लेटर भी आपको मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। बैंक कैन ऑलवेज डू वन मोर थिंग एडिशनली, जैसे कि आई डू नॉट नो दिस, नोवेयर इट हैज बीन मेंशन, सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑडिटर करता है। मान के चलो कि सरप्राइज इंस्पेक्शन हो गया, you can inform the borrower, today the gold package placed by you was inspected by the auditors following certain procedure, and you can inform with the condition that he can come and see whether the contents of the packet are intact or not. That you can do. That can be done in the presence of, because you prepare a list of ornaments which are kept in the packet in the presence of valuer. So when after the such surprise verification, if you inform the customer, what's going to happen, he is going to come and check, and your valuer will also come and check that the ornaments which I have certified of a certain carat, they are there intact or not. Now this is an administrative issue. ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आपको करना है, नहीं करना है, आपको कॉल लेना है। लेकिन ऐसा है ना कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में जाते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ढीला ही पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं। लेकिन बैंक के भलाई के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। मैं ये जानता हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट मिस द second part of the gold loans, which I am going to talk to you. I am going to share my views as to how you can protect your interest and ensure a formation of a sound standard operating procedure for the gold loans. Thank you so much. Thank you so much for watching.